Welcome to episode 105 on SEO Talk Spaces. Here we are on a Monday evening. Uh, if you are joining, listening on your Monday morning, afternoon, evening, wherever you are based from, but welcome to SEO Talk Spaces episode 105. And today's topic is again a bit controversial. Is informational content dead? Are we sure about it? Um, with AI overviews and LLMs taking over top of the funnel SERP, many SEO professionals and marketers are like, is it still worth investing in tofu blogs and guides, or has the game changed completely? We have a lot of questions in front of us. But in today's session, I think so we'll explore a couple of important facets. What's really happening to informational content? Is traffic loss equal to value loss, revenue loss, and most importantly, uh, what to do next. So stick around and we'll go through some real examples, fresh formats, and future proofing tips from the community. Over to you, Malarbai. All right, thank you so much. And yeah, you have set the base for a wonderful conversation that is lined up for today. So, episode 105, and everyone is saying informational content is dead. But is that really true? And we will talk about this through the entire conversation over the next 60 minutes or and see what is really happening because you know it's not over till it's over when it comes to SEO because it's ever evolving and this coming from someone who has been around for 2 decades, trust me, it's not going away. But what is changing? Let us go through it today. And again, the same format. We'll start with the basics and then go talk little deeper into each of the subject. And we'll talk about AI overviews. We'll talk about LLMs. We'll talk about tofu, metrics, budgets, and all those stuff. So this should be informative. I don't know if it would be interesting, but stay tuned. There is a lot more to this entire topic, and we'll get started with the first question. And like I said, just the basics. What is causing this sudden shift away from informational content? Is it the impact of AIO, declining CTR, or changing user behavior? But Yep. Um, great way to great question to kickstart the conversation tonight. I think so. I'll go back to pre-COVID era when featured snippet started to show up in 2017, 18 around, and there was never a conclusion. We all were debating that is featured snippet helping? It's showing the answers right outside on the CRP, so it's kind of reducing the traffic. But still, we all were so positive and having so much conversation without data points. But here we are. With the SG and now evolving into AI overviews, we have a lot of zero click results and user behavior is changing. And all of this affects into reducing the ROI of tofu content, informational content. So it's like building a beautiful billboard that no one looks up at anymore because everyone's got GPS on their phones. Like if we could relate to that analogy, yeah. So that's how we are in this zero click world. Yep. all right, Deepali, do you want to add anything? Okay.
Yeah. So I would like to add one point. Even though we are saying, okay, user behavior is changing, this is happening, AI mode is there, but we need to ask this one question that, I mean, we are adapting because we are in the marketing field, but is user, like, end user who is like a layman, is he AI first? But what about the end user? Because when I speak to normal people who are not from tech field, they are not using chat gpt as prevalent as we are. So I don't know that. Yeah, totally, totally. Oh, valid point, Dipali. So for different businesses, for different brands out there, they need to understand their target audience, what demographics they belong to, how are they consuming content, and it totally depends. But the heavy reliance on Google search, whether it's on desktop, whether it's on mobile phones, AI overviews is taking over the top SERP real estate. So that's a burning problem. So until the behavior changes, that people like, so who are tech savvy professionals, whosoever, they are probably not searching some of the queries on Google. They are directly searching on ChatGPT or directly on the Gemini. But still, the behavioral change will take at least years, couple of years, because it's not that easy. um, so here, what I have seen, like especially in younger generation, like younger millennials and Gen Zs, they are going video first. They are searching on social. They are searching on TikTok or Instagram. So I think we also have to focus on, okay, not just AI first, but also how the user are more interacting more with videos, and how we can include that in um, tofu. Oh, absolutely, an interesting point. But again, so even if I go back to say the generic users, right, someone who is probably not as tech savvy as marketers per se, even they kind of have got exposed to the entire AI overviews. So for them, it really does not matter whether the result is coming from an AI overview or is it the normal sub, until it is able to suffice their requirement of giving them the right information. So in that case, right, so we'll still have to look at the entire information dissemination part, how for a brand they can still optimize themselves to come in the AIO views, etc. And that is where the question goes back: do we still need top of the funnel content, right? Because there is an AIO impact at this point of time. I was going back on this next question in terms of the same thought process. Like, has AI overviews and LLMs killed the value of entire top of the funnel content? Uh, it's an interesting one, but if I can think of something which is a similar story, um, so if we think of music, radio consumption didn't die with Spotify, but the format of music consumption changed. So thinking in that direction, I think so. It's not totally killed, but it has transformed. And now it's harder to win with traditional tofu blogs. And if we compare to the benchmarks, like, we won't be able to get those conversion numbers as we used to get in 2023 or until middle of 2024. Those were the peak and historic peak numbers in 2024. I think so. The overall uh, conversions that we used to get through high search volume, top of the funnel content,
was in like the lifetime peak was probably 2024, the last year. Like that's pretty much it. Like we won't be able to see those numbers again, considering that AI overviews and LMs have not directly killed the this thing tofu content, but it has transformed the way the audience, the searchers have been consuming. So it's very difficult. The numbers for sure have gone down, and it's not coming back anytime soon. Like it's not coming back. That's the thing. Oh no, definitely, definitely. So that is where that there is definitely an impact of the entire, uh, you can say, ROI or CTR from the AI overviews, and that is definitely becoming little challenging for brands. But again, if I have to get into the entire metrics part, uh, where exactly, or say where exactly is are brands able to see that measurable drop in traffic or from informational content basically, right? Is it uh, again, I don't know what would be a perfect example of that, but where do you think is that measurable drop coming in traffic or conversions from informational content? Um, so the fundamentally the textual content format where AI overviews surface the answer right away in like most of the cases, like 80% of the cases. Very few cases where the audience needs to get inside that particular blog and find something or get more details out of it, because the nature of the queries that ranks those informational content generally surfaces the answer on the SERP. But having said that, HubSpot also, like there was this huge buzz 4 5 months ago where uh, HubSpot lost a good chunk of informational traffic, and the reason was clear. The content was starkly different, like shrug emojis and whatnot. Like, but if we look at HubSpot's tofu content strategy, they have also shifted their focus into other SERP features where there is still some juice left with respect to CTR and Google sending traffic. Uh, those are video snippets, FAQs, and couple of tools they are kind of integrating in their informational content. So that's how they are kind of playing around, maximize the juice, whatever is left from the informational content. Okay, question was mainly in terms of that measurable drop in traffic. So, is it the traffic or conversion from informational content? Where exactly is that drop coming in? So there are two things. One is AI overview. Another thing is HCO, helpful content update, right? So बेसिकली बहुत सारे लोग हंगामा कर रहे हैं इस बात का कि उनकी इंफॉर्मेशनल ट्रैफिक गिरी है, ठीक है। हाउएवर रीजन उसका हमेशा रीजन जो है ना वो हमेशा वो नहीं है, क्या बोलते हैं आपका एसजी नहीं है उसका रीजन, या एआई मोड हमेशा रीजन नहीं है। उसका मेजर जो रीजन है वो एचसीयू है, उनकी रैंकिंग गिरी है जिसकी वजह से गिरी। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम वर्किंग विद आज भी मैंने फेसबुक में डाला था ये चीज कि आई एम वर्किंग विद क्लाइंट जो एजुकेशन फील्ड के अंदर में है, और उनका ऑलमोस्ट सारा कंटेंट एजुकेशनल, मतलब ये इंफॉर्मेशनल ही है। बहुत कम ही उनका कंटेंट है जो बेसिकली उनका नॉन इंफॉर्मेशनल है, ठीक है। अब उनके साथ में मैंने बहुत काम किया, उनके साथ में पिछले 7 महीने से काम कर रहे हैं, और ये चीज भी पिछले 7 महीने से चल रही है। मुझे काफी ज्यादा इंक्रीमेंट है ट्रैफिक के अंदर में, जो मैंने इंफॉर्मेशन, मतलब मोस्टली इंफॉर्मेशन, बहुत किकास कंटेंट हम लोगों ने लिखा। हम लोगों ने इतना किकास कंटेंट लिखा कि गवर्नमेंट की वेबसाइट जो, मतलब वो बेसिकली गवर्नमेंट के एग्जाम करवाती है, ठीक है। अलग अलग जैसे कि एसबीआई वगैरह के एग्जाम है तो वो कराती है, तो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट उसको हम लोगों ने आउट रैंक करके रखा हुआ है। अब इंफॉर्मेशनल क्वेरीज के अंदर में वी नीड टू डिवाइड कि किस काइंड की है। अगर हम शैलो इंफॉर्मेशनल क्वेरीज की बात करें, जैसे कि हम बात करें कि भाई एसबीआई पीओ की सैलरी कितनी आएगी,
तो वहां पे आपका ड्रॉप हुआ है, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली लिख दिया गया 50,000, 60,000, 66,000 हो गया। ये शैलो क्वेरीज है, एक लाइन में खत्म हो सकती है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशनल क्वेरीज है, जैसे कि हमें ये बताइए कि एसबीआई पीओ का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या है, ठीक है? तो इसके अंदर में जवाब तो दे रहा है आपका एसजी, वो दे रहा है जवाब, आपका लिस्टिंग में नीचे आ रहा है, बट वो जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि ओबीसी है, नॉन ओबीसी है, इसके लिए अलग फैक्टर है, जो एससी एसटी उनके लिए अलग फैक्टर है, जो जनरल उनके लिए, जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज है वो हिट नहीं हो रही है, मतलब बेसिकली उसके अंदर में ट्रैफिक अभी भी वैसा आ रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज ही मैंने उनका चेक किया था, वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। और हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था कि 400 प्लस कीवर्ड के ऊपर में, मतलब उनका हजारों कीवर्ड है, उसमें 400 प्लस कीवर्ड को हम लोगों ने पकड़ा, और 400 में से 400 450 के लगभग में था, 450 में 440 कीवर्ड जो है वो इन्फॉर्मेशनल पे, और हम लोगों ने इसको बकेट में डिवाइड कर दिया कि बकेट 1 मतलब होगा 1 से 3 रैंकिंग, बकेट 2 होगा 4 से 10, बकेट आपका 3 होगा तो 11 से लेके आपका 50, और बकेट 4 होगा 51 से लेके 100 के बीच में होगा। और हम लोगों ने बहुत 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 ज्यादा घुस के काम करना चालू किया, और अभी 7 महीना के बाद में जब हम लोगों ने आज सुबह ही में रिजल्ट चेक किया था, तो इनकी 95% जो क्वेरीज हैं वो टॉप 10 में रैंक कर रही है। और इन 450 क्वेरीज के अंदर में 100 क्वेरीज को हम लोगों ने बेसिकली बहुत, ये तो 450 हमारी स्पेसिफिक थी, हजारों क्वेरीज तो में स्पेसिफिक थी, उसमें भी एकदम इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो थी वो हम लोगों ने निकाला था। तो उसमें भी अराउंड 100 क्वेरीज में भी 93% के लगभग में हम लोग टॉप के ऊपर में रैंक कर रहे हैं। ट्रैफिक भी हमारी मल्टीपल टाइम इंक्रीज की है। जब हम लोग ने ज्वाइन किया था तो अराउंड इंफॉर्मेशनल क्वेरीज में उनकी ट्रैफिक मंथली थी 60,000 के लगभग में थी, और अभी लगभग 1.5 लाख के ऊपर में ट्रैफिक आ रही है इंफॉर्मेशनल, ठीक है? तो अब ये ट्रैफिक हमारी बड़ी, वो रैंकिंग बड़ी, चीजें बड़ी, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं, बहुत सारी चीजें। हाँ पार्थ, क्या हाँ पार्थ, कोई क्वेश्चन है क्या? ये कंप्लीट कर लो, मैं एक ऐसा क्वेश्चन था। हाँ, तो बेसिकली हम लोगों ने कहाँ पे ध्यान दिया? हम लोगों ने जो चीज पे ध्यान दिया, हम लोगों ने कंटेंट तो किक-एस बनाया, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे माइक्रो चेंजेस किए। माइक्रो चेंजेस क्या होता है? जैसे कि अगर हम कोई टेबल दे रहे हैं तो टेबल का इनसाइड होगा, ठीक है? एक बार हमारी रैंकिंग ड्रॉप हुई थी, अब छोटी-छोटी चीजों को गूगल पकड़ रहा। रैंकिंग कैसे ड्रॉप हुई थी कि टेबल के अंदर में हम लोगों ने लिखा था ईयर्स वर्ड नहीं लिखा था, मतलब बेसिकली वो लिख दिया था कि एलिजिबिलिटी में ईयर्स होता है ना, तो टेबल के ऊपर में ईयर्स नहीं लिखा था, और नीचे भी नहीं लिखा था, लिख दिया खाली 3 4 5, तो वो ईयर्स वर्ड नहीं लिखा था ना, उसकी वजह से हमारी रैंकिंग ड्रॉप कर दी। तो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में तो अभी भी मिल रही है, नॉन कॉम्प्लेक्स क्वेरी में हम गए हैं। हाँ बताओ ना पार्था, बताओ। नहीं, आप बहुत एग्जांपल एंड आई एम ब्लाइंड। मुझे क्वेश्चन कि पहले जो सीटीआर था और अभी सीटीआर, तो सीटीआर ट्रेंड क्या है अब? इंफॉर्मेशन सीटीआर सीटीआर की बात कर रहे हो? जी। क्लिक थ्रू रोड तो हमारे घर गिने हैं यार, लेकिन हमारी हम बेसिकली देखो, अभी है ना, जैसे सब बोलते हैं ना, हर जगह तुम्हें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, एआईओ में भी करना पड़ेगा, जीईओ में भी करना पड़ेगा, पता नहीं कौन कौन से टर्म निकाल के लेके आ गए, है ना? राइट राइट। तो बेसिक रूल, एक बहुत बेसिक रूल है, वो बेसिक रूल ये है कि अगर तुम अपने कंटेंट को एचसीयू के अकॉर्डिंग रखोगे, वो हर जगह रैंक करेगा, ठीक है? अगर गॉट इट। तुम्हारा कंटेंट, अब जैसे कि मान लेते हैं कि तुम एक सैस टूल के बारे में, मल्हार भाई हैं, वो सैस टूल के कंपैरिजन के बारे में लिख रहे हैं, है ना? देखो ये सैस टूल का कंपैरिजन है। हाँ, अगर वो टेबल नहीं देते हैं तो वो रैंक नहीं करेगा, उनको टेबल देने पड़ेगा, गॉट इट। ठीक है? अगर वो सैस टूल के बारे में सिर्फ सैस टूल के बारे में लिखते हैं, कंपैरिजन नहीं लिखते हैं, ठीक है? तो अगर वो उसका ट्रबल शूटिंग के बारे में नहीं लिखेंगे कि भाई, क्योंकि जब तक ट्रबल शूटिंग नहीं होगा तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, उसकी टॉपिकल रिलेवेंसी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है? तो वो रैंकिंग करने में मुश्किल कर देगा, मुसीबत कर देगा, ओके। ठीक है? तो हमें अब है ना, जो कंटेंट है, पहले हम लोग क्या करते थे, कंटेंट प्रोड्यूस कर देते थे, ठीक है? और उसके बाद में हम बैकलिंक पे बैकलिंक मारे जा रहे हैं, बैकलिंक पे बैकलिंक मारे जा रहे हैं, है ना? और उसके बाद रैंकिंग पे हम उम्मीद करते थे। लेकिन अभी याद है जब हम लोगों ने पहला टाइम पार्थ, हम लोगों ने जब बात किया था, जब तुमको मेरे को पहले टाइम में बुलाए थे, तो उस टाइम में मैंने एक चीज बोला था, कंटेंट मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि व्हाट आफ्टर क्लिक, क्लिक के बाद क्या होगा। कोई यूजर तुम्हारे कंटेंट में आ जाता है तो क्लिक के बाद क्या करेगा वो यूजर, है ना? इट मैटर्स अ लॉट, ठीक है?
वही सेम चीज हो रही है कि अगर क्लिक करके आ भी गया तुम्हारे इसमें, तो उसके बाद वो क्या एक्शन लेगा? कहीं ई कॉमर्स से अगर वो ऐड टू कार्ट नहीं किया तो खराब कंटेंट है तुम्हारा, ठीक है? अगर तुम्हारा मान लेते हैं कि कोई इंस्टीट्यूट का पेज है या फाइनेंस का पेज है, अगर वो लीड छोड़ के नहीं गया तो खराब पेज है तुम्हारा, है ना? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, तो व्हाट आफ्टर हमें सोचना पड़ेगा कि क्लिक यूजर आ गया तो क्या करना है? अभी मैं लिटरली जो कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंट बोल देता हूँ, उसके बाद बता देना कि अभी मैं लिटरली कोई भी एसईओ प्रोजेक्ट लेने से पहले बहुत डिटेल्ड में पर्सोना मारता हूँ यूजर का कि भाई तुम्हारा तुम्हारा यूजर कौन है? तुम्हारा यूजर कौन है? एज क्या है? जो हम लोग ऐड में करते हैं, ठीक है? उसका फ़ियर क्या है? ये क्यों डरता है? क्या चीज़ है? क्या चीज़ वो नहीं चाह रहा है? फलाना-ढिमकाना, है ना? जितनी चीज़ें निकाल सकते हैं, निकालते हैं। देन उसके बाद में मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। अभी मेरा तो अप्रोच ये है। या नो प्रॉब्लम। सो नहीं, आप आई आई एम टोटली अलाइन कि आपने जो पॉइंट शेयर किया, काफ़ी चीज़ें मैटर करती है। एंड जो एंगेजमेंट मैट्रिक्स है कि भाई वो वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशनल कंटेंट में अगर आ भी रहा है ब्लॉग पे और 2500 वर्ड का कंटेंट है, कितना स्क्रॉल कर रहा है, वहाँ पे कितने इंटरनल लिंक्स है, किसको क्लिक किया, कहाँ पे वो छोटे-छोटे चीज़ें हैं, या आपने कुछ सीटीए डाला, कहाँ पे एंगेज कर रहा है। हाँ, तो वो जो सैटिस्फैक्टरी एंगेजमेंट मैट्रिक्स है, आई थिंक सो गूगल के एल्गोरिदम के पास उसका ट्रैकिंग पूरा मशीन बेस्ड है, मतलब काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि बटन क्लिक्स ये वो कंपेयर टू कि उसका अंडरस्टैंडिंग कंटेंट के हिसाब से। तो अभी भी वो एल्गोरिदम इज वेरी वेरी मैच्योर्ड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंगेजमेंट मैट्रिक्स रादर देन अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट। सो वो तो है। एंड आई रियली लाइक द पॉइंट जो आपने बताया कि कुछ कुछ प्री रिक्विजिट्स है कि भाई सास कंपैरिजन है तो टेबल तो चाहिए ही चाहिए, ट्रबल शूटिंग चाहिए ही चाहिए, मतलब वो बेसिक चीज़ है कि आप ये कंटेंट फॉर्मेट कर रहे हो तो इतना तो चाहिए ही। तो अभी थैंक यू फॉर शेयरिंग। बेसिकली ये हो गया कंटेंट इज़ द किंग बट ऑप्टिमाइज़ेशन इज़ द किंग मेकर। और मैं तो ये लिंक्डइन के इन्फ्लुएंसर लोग से परेशान हो चुका हूँ यार, इतना फ़ियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। या एक दिन ये हुआ कि एक लिंक्डइन का इन्फ्लुएंसर था, उसने लिखा कि चैट जीपीटी विल किल गूगल एंड ऑल दोज़ थिंग। हम बोले भाई चैट जीपीटी में पूरे साल में कितने सर्चेस हुए हैं? बताओ कितने यूज़र है? बोला 200 मिलियन। हम बोले कि गूगल का में कितने हुए बताओ? तो बोलता है इतने बिलियन। हम बोले कि भाई चैट जीपीटी को 8 साल लग जाएगा, अगर इस ऑर्डर में भी लेके जाएगा, है ना? हाउएवर हाँ, तुम्हारी बात सही है कि सर्च की बिहेवियर चेंज हो रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो गया कि चैट जीपीटी खा जाएगा, अगले 2 महीने में खा जाएगा गूगल। करेक्ट करेक्ट, हाँ गूगल मतलब को खाने गूगल को खाने एलेक्सा भी आया था, है ना? एलेक्सा हाँ डिवाइस जब बना था बोला कि ये तो वॉइस है तो गूगल को खा जाएगा। गूगल ने खा गया एलेक्सा को। उसका जो वॉइस अपना ट्रेन किया गूगल ने, है ना? खा गया हाँ, उसको एलेक्सा उसने। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, आई आई टोटली एग्री। मतलब लिंक्डइन पे तो जो आ, ये चल रहा है फोमो वाला गेम, एंड एसईओ हर इज डेड। दूसरे दिन हर दूसरे दिन कोई ना कोई डालता रहता है। पहले लोग बहुत रिएक्ट किया, कमेंट्स किया। अभी आई नो अ बंच ऑफ फ्रेंड्स, एक्स कलीग्स जो मेरे थे, जो दूसरी कंपनीज में काम कर रहे हैं इधर उधर, they have stopped interacting with those LinkedIn posts because वो इंटरेक्ट करते हैं और उनके सीनियर्स दूसरे दिन गला पकड़ लेते हैं। भाई उसने ये लिंक्डइन पोस्ट डाला था, आप ये इम्प्लीमेंट करके दो, ये एजेंट बना के दो, ये करके दो, वो करके दो। वो कर रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते? सो हुँ। भी उनको पता चल गया ये फंसने वाला गेम है, तो दे हैव स्टॉप्ड इंटरेक्टिंग एट ऑल। यस, ओवर टू मलर भाई। Okay, so again, I will continue on the same track as Arbab has mentioned. So, say, uh, is tofu uh, still useful for a brand recall and future consideration? Because again, Arbab alluded to that point, long term brand visibility and attribution and all the stuff still matters because there is an HCU related or NHU relationship to the entire tofu content or informational content as well. So, uh, do you think tofu is still useful for better brand recall and for futuristic considerations? ओह, लवली क्वेश्चन। आई थिंक सो मेरे पास एक एग्जाम्पल है। सो एज रेफ्स ने अपने पॉडकास्ट पे शेयर किया था ये डेटा, एंड
So if we look at Ahrefs, काफ़ी SEO related questions के लिए है, काफ़ी link building tactics के लिए है। उनका ब्लॉग जो है, उनको उनका ब्रांड जो है, इट गेट्स ब्रांड मेंशंस, पर उनको साइनअप्स फ्यूचर में मिलते हैं। सो इट्स सिमिलर टू कि आप एक एग्जीबिशन में गए हो, यू पास थ्रू अ स्टॉल फॉर 5 times, इवन दो वी डोंट स्टॉप नियर बाय, बट वी स्टिल हैव दैट मेमोरी कि भाई ये ब्रांड का स्टॉल था। एंड फॉर श्योर ब्रांड बिल्डिंग फेमिलियरिटी के लिए, even if it's a no click journey, it's very much important for brand recall. ठीक है, और कोई अगर बोलेगा तो फिर उसके बाद मैं बोलूंगा। नहीं, you can continue. आप if you want to add anything. ठीक, Yeah. देखो अभी हाल फिलहाल में ना सैम अल्टमैन ने एक डेटा दिया था कि कितने % लोग है ना चैट जीपीटी पे भरोसा करते हैं। ठीक है, अराउंड 80% लोग जो है वो चैट जीपीटी पे ब्लाइंड फेथ करते हैं। अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जो गूगल के यूजर है वहां पे मिक्सचर ऑफ स्मार्ट यूजर एंड डम यूजर दोनों। डम यूजर में बेसिकली इसको ये मत समझो कि मैं उसको बेइज्जत करने के लिए बोल रहा हूँ, वो एक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, डम यूजर मतलब जो इतने इंटरनेट सेवी नहीं है, ऑल दोस थिंग। ठीक है, तो और जो चैट जीपीटी यूज करते हैं मोस्टली थोड़ा सा एक लेवल ऊपर, उनके ऊपर में बेसिकली वो ऊपर है। अब टोफू कंटेंट करने के लिए दो पॉसिबिलिटी है। एक तो टोफू कंटेंट ने इंफॉर्मेशनल कंटेंट बनाया, कॉम्प्लेक्स क्वेरी की बात कर रहे हैं, तो उसे एसजीई से आंसर नहीं मिला, तो वो नीचे की तरफ में आया और तुम्हारे कंटेंट को क्लिक किया, तो वो तुम्हारे लिए विन है। इन केस अगर वो चला जाता है चैट जीपीटी में या जेमिनाई में चला जाता है, तो जेमिनाई लिंक देता है, लिंक में बताता है कि जो भी कंटेंट उसको कॉन्टेक्चुअल लग रहा है उसके हिसाब से वो लिंक देता है। ठीक है, और वो टोफू कंटेंट भी होते हैं, मुफू भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो उस केस में तुम्हारा जब वो लिंक देता है और वहां पे ट्रस्ट वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो यूजर है वो थोड़ा सा स्मार्ट है। ठीक है, तो जो यूजर है वो थोड़ा सा अगर स्मार्ट है इस सेंस में, तो उसका कन्वर्जन होने का चांसेस भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा हो चीजों में लेके। ठीक है, तो अगर इस लेंस से देखें तो टोफू कंटेंट हमें बनाने चाहिए, क्योंकि जब तक हम बनाएंगे तब तक वहां पे भी अपेयर नहीं होगा। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, इस लेंस से देखें, तो बनाने जरूरी, ये मेरा पॉइंट। Oh, fair point. Parth, do you have anything to add? No, I think so. मैंने पहले जो ऐड किया था, but I'm aligned with what Arbab bhai shared. Okay, so I'll take a little controversial bit here in terms of because we talked about a lot of informational content and all this stuff. So, would you think that many of or much of that content which is there or out there is more a rewording of Wikipedia with lot of keywords? And is AI exposing that kind of flaw which is there and saying making it more easily snackable, consumable content out of that? Do you feel that is happening? Parth? Yes, Arbab bhai, I think so. He left. Okay. I got logged off, I guess. Yeah. I think so. There was a study. I don't remember the exact names. Don't quote me on that. But ऐसा था कि Gemini नहीं, but I think so. Perplexity is more relevant, is more dependent on उसके जो आंसर्स है on Wikipedia. एंड ऐसा पूरा स्टडी था कि ये इसका डेटा यहाँ से ज़्यादा सोर्स होता है, इसका वहाँ से ज़्यादा सोर्स होता है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन। पार्थ, एक क्वेश्चन है मेरा, श्योर। चैट जीपीटी का डेटा कहाँ से सोर्स होता है?
So from what I understand and from whatever I have experienced so far, it's majorly trained on आप Bing पे जो आपके वेबसाइट स्क्रॉल वगैरह होते हैं तो गलत Bing है. के साथ yeah, from whatever knowledge I have, yeah. But What do I am giving you an example. ठीक है. Mhm, एक मेरा क्लाइंट है जिसकी पूरी वेबसाइट बिंग में इंडेक्स नहीं है. उसका रीजन ये है कि उसने अपने mhm, वेबसाइट को जैसे .co.in था तो .in की तरफ में शिफ्ट किया. ठीक है. okay, तो .in में पूरी वेबसाइट शिफ्ट हो गई, लेकिन उसका कुछ कुछ पेजेस है जो .co.in से शिफ्ट नहीं किया जा सकता है. जैसे उसका ईमेल एड्रेस हो गया या कुछ कुछ पेजेस हैं. जैसे उसने एक पूरा का पूरा ना कोर्स का CMS डाला हुआ है. ठीक है. got it. तो वो CMS एक सब डोमेन में, जैसे कि कोर्स डॉट वेबसाइट का नाम .co.in, उसको शिफ्ट करेगा तो पूरा पूरा उसका ईमेल मेल सब हिल जाएगा. तो वो वर्जन .co.in का एग्जिस्ट करता है, उसको हटाया नहीं जा सकता है. जिसकी वजह से एम्बिग्यूटी होने की वजह से चैट जीपीटी ने तुम्हारा बेसिकली उनका मतलब कि दूसरे पेज को इंडेक्स ही नहीं किया. तुम बिंग ने इंडेक्स ही नहीं किया, कुछ भी कर लो इंडेक्स नहीं किया. तुम कुछ भी कर लो, कोई भी इंडेक्स लगा दो, इंडेक्स 9 लगा दो, कुछ भी लगा, नहीं किया. येट वो बिंग में अपेयर होता है, मतलब वो चैट जीपीटी के आंसर में अपेयर होता है और बड़े मात्रा में Got, अपेयर. got it. But it could be one of the reasons कि आप आपका कंटेंट बिंग में इंडेक्स नहीं हो रहा बट क्रॉल तो हुआ हो सकता है तो वो सर्वर लॉग्स में जाके देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉट स्क्रॉल कर रहा है. सो डू यू थिंक इट डिपेंड्स ऑन दैट एज वेल? I don't think it is using Bing data as of now. Okay, okay. Mm-hmm. Maybe index data, as you say, but not the crawl data, but the raw data. Maybe it could, but I don't think. Yeah. मतलब कि फिर भी अगर बिंग में मैं इंडेक्स नहीं हूँ, ठीक है, वो टैग ही नहीं इंडेक्स, तो रेड, ये एक रेड सिग्नल होगा चैट जीपीटी के लिए कि वेबसाइट क्यों नहीं मतलब कि बेसिकली इंडेक्स है, राइट. Hmm. वो applicable होगा. नहीं, इंटरेस्टिंग केस स्टडी है. ऐसा कुछ हो तो इस पे डीप डाइव कर सकते हैं ताकि करेक्ट करेक्ट. No, so probably was that page or the site shared over social media platform earlier, because there could be a chance that ChatGPT ना, get different. those pages we created new, Hmm. totally new. अच्छा. पहले वेबसाइट में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. That's समझे. interesting. और वो सोशल मीडिया वगैरह में शेयर नहीं होती. Nice. A good case study to look at. Okay. Yeah. मुझे लगता है कि अभी चैट जीपीटी खुद का ही इंडेक्स बना रहा है वो. हो सकता है, बिल्कुल. You, राइट, प्लीज कंटिन्यू. yeah, you never know because it is studying lot of data. It is learning on lot of data, so it could be making its own algo. Okay, so moving on from a SEO lens, right, and going back into say the signals part of it. What kind of signals do you think still matter, and to understand more from it, informational content as being a helpful content? What signal still matters for Google? Is it freshness, needs met, semantic? What do you think matters the most? The very first thing that I could think is structured data. How we structure the data. Like you covered in previous answers. Maybe हमने पहले cover किया कि कहाँ पे टेबल चाहिए, कहाँ पे बुलेट्स चाहिए, कहाँ पे पैराग्राफ्स चाहिए. So one is how do we भाई structure our स्ट्रक्चर data? डेटा मत बोलो, टेक्निकल एसईओ वाले बोलेंगे हमारे वजह से खाली रैंकिंग होता है, कोई दूसरा एप्लीकेशन नहीं नहीं नहीं, no, I'm not referring to that schema को मैं नहीं बोल रहा. मैं तो I'm just textual data को structure करने के लिए टेबल या bullets या ऐसे. And again the EAT part, जो एक्सपीरियंस बैक्ड राइटिंग है. अगर आपका कोई पर्टिकुलर हेल्थ और फिनेंस या ऐसे कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है एंड इट शुडंट बी एनीथिंग फ्लफ कि मतलब आप तुरंत ही वो पर्टिकुलर हेडिंग टैग के नीचे फर्स्ट पैराग्राफ में 4 to 5 sentences में मैक्स इफ यू आर रिप्लाइंग
So clarity, relevance, experience based writing एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती है. So my point there is also, oh, and this was basis some conversations earlier also, is do we actually need structured data? Because the this generation of AI tools, or even say Google at its own backends, right, is able to understand the semantic meaning of your content. So do you still need structured content? Because I personally believe that if you have the thought process and if you have just written it, even without putting a structure together, the systems are intelligent enough to understand the context, understand the meaning, and understand your data. So do you think it's still a major factor? Just a quick thought here. I don't think so. Google is still intelligent enough to like scheme the content and understand and conclude everything. If we know there's a comparison, and if the bot finds the table HTML code, like the why not, like it will easily find out that, and then it would be a check mark. Yeah, positive. We have a tabular format for this particular query's answer, and it's easy for it to show. And one more thing, where I'm not much into WordPress, but either it was Yoast or RankMath. A couple of weeks ago, I saw that they're adding some AI tags into HTML. This thing, there was a debate going on a community, and what I found out was there's no harm adding those tags. It might help or it may not, but there's no harm in adding those tags. Help identify those GPT bots and Gemini bots to find those content pieces that you want to cite in answers. I'm 100% sure there's no clear formula to it, there's no clear documentation to it, but people are like going two steps in advance, like uh, they want to have some unique edge of showing off or something like that. But yeah, uh, yeah, अरबाब भाई आप कुछ बता रहे थे. एग्री विथ पार्थ बिकॉज रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल रैंक किया है गूगल पर जिसमें मैंने स्ट्रक्चर डेटा दिया था मतलब इट वाज ऑल अबाउट मानसून डेस्टिनेशंस एंड आई इंक्लूडेड स्ट्रक्चर डेटा ऑफ हाउ टू रीच दैट डेस्टिनेशन और आपका प्राइस क्या होगा स्टे का तो लाइक माय डोमेन अथॉरिटी वाज 0 बट स्टिल आई आउट रैंक टाइम्स ऑफ इंडिया. So yeah, that's my quick thought about structured data. Okay, fantastic. Interesting आदित्य, thanks for sharing it across. गूगल का एक और चीज है, if we search for the term hidden gems with any Hmm. modifiers, so वो फेवर करता है ऑथेंटिक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाला ट्रैवल ब्लॉग, Hmm. विच इज रिटन लाइक फर्स्ट पर्सन स्टोरी जिसने शेयर किया है, तो वो है. एंड अगेन इट्स वेरी स्पेसिफिक. मैंने शायद लास्ट या उसके पहले वाले स्पेसिस में भी बोला था कि Hmm. इफ यू सर्च फॉर थिंग्स टू डू इन सैन फ्रांसिस्को, वीक डेज पे आप सर्च करो और वीकेंड पे सर्च करो, तो Hmm. उसमें भी SERP पे लाइक इट्स shows different things. So yeah. Yeah. Actually, Google is getting smart day by day. So it like Google try कर रहा है कि intent कैसे मतलब fulfill कर सकूं. So I think that's why it changed sir according to intent and yeah. ठीक ठीक मैं अपना पर्सपेक्टिव रखता हूँ इसके अंदर में. Hmm. तो डे बाय डे लिंक की वैल्यू घट रही है और लिंक की वैल्यू घटेगी, Hmm. तुम लोग मान के चलो. ठीक है, हाँ. क्यों मान के चलो? लिंक को वैल्यू क्यों देता था गूगल? लिंक को इसलिए वैल्यू देता था क्योंकि गूगल के पास
ऑथोरिटी को अंडरस्टैंड करने की कोई चीजें नहीं थी। अब ऑथोरिटी कैसे बनती है? पहली चीज कि अगर मान लेते हैं कि शाहरुख खान पहली मूवी कर रहा है दीवाना फिल्म, ठीक है, उस दीवाना फिल्म में शाहरुख खान को नहीं जानता, यानी कि उसकी एक्सटर्नल ऑथोरिटी नहीं बिल्डअप है। जो बिल्डअप है उसका कंटेंट के थ्रू बिल्डअप है, चीजें बिल्डअप है, उस कंटेंट के थ्रू अपने आप को उसने स्टार बनाया। एक बार मूवी बनी, अच्छी कंटेंट है, लोग उसको देखने लगे, एंड देन उसके बाद में उसको उसके बारे में बहुत सारे लोग बात करने लगे। देन एक्सटर्नल जैसे लिंक बनता, लिंक वगैरह बन गया, लिंक बिल्डिंग, ठीक है। पहले गूगल के पास में क्या था कि वो समझ नहीं पाता था कंटेंट को, और 2014 के लगभग में गूगल ने जब हमिंग बर्ड लेके आया, तो उसी के टाइम से उसने बेसिकली अपने एल्गोरिथम को ट्वीक किया, और वहां से उसने एआई को यूज करना चालू कर दिया। एआई का एल्गोरिथम पहले उसने क्या किया, तुम अगर गूगल में गौर से देखो तो बहुत स्टेप बाय स्टेप में इसलिए लेके आया। पहले वो क्वेरी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एआई लेके आया 2015 के लगभग में, फिर बार्ड लेके आया जो अंदर के कंटेंट को समझता है, फिर स्मिथ लेके आया, फिर उसका जेमिनाई एरा में जेमिनाई को लेके आ गया, जेमिनाई एल्गोरिथम लेके आ गया। वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में जेमिनाई को, उसने बहुत सारे टेस्टिंग किया, उसके बाद वो आगे बढ़ा, और इसने बहुत सारे ये भी खरीदे हैं, बहुत सारे पेटेंट भी खरीदे हैं। एक उसने एप्पल का एक इंजीनियर ने पेटेंट किया था, है ना, उसको भी क्या गोल्डन करके क्या नाम था, उसको भी गूगल ने खरीदा है, ठीक है। और बेसिकली उसको अपने सर्च में यूज करता है, मैं नाम भूल रहा, गोल्डन करके कुछ नाम उसका, ठीक है। तो डे बाय डे जो तुम्हारा वैल्यू ऑफ जो कंटेंट है, वो वैल्यू ऑफ कंटेंट बढ़ रहा है। और वैल्यू ऑफ कंटेंट कैसे बढ़, आई थिंक लिंक्डइन में हिमानी ने कुछ पोस्ट किया था, तो मैंने उसको बोला था कि गुड कंटेंट एंड हेल्पफुल कंटेंट में फर्क, बेस्ट कंटेंट और हेल्पफुल कंटेंट में फर्क होता है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, दोनों में फर्क नहीं होता। तो मैंने उसको बोला कि यही सेम एग्जांपल दिया था जो अभी पार्थ ने दिया, कि अगर एक आदमी एक बहुत अच्छा कंटेंट राइटर है और वो लिख रहा है कि सोनी का एक कैमरा आया है और उसके अंदर में ये फीचर है, फलाना ढिमकाना है, वो आदमी उसके बारे में लिख रहा है, वेरी गुड कंटेंट, अच्छा कंटेंट कर रहा है, बहुत अच्छा कंटेंट। लेकिन एक फोटोग्राफर उसी कंटेंट को लिख रहा है कि उस कैमरा के अंदर में क्या है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस उस चीज के अंदर में, वो इन एंड आउट उस चीजों को जानता है। तो भले उसका इंग्लिश अच्छा ना हो, भले उसका स्ट्रक्चर उतना ज्यादा अच्छा ना हो, ठीक है, लेकिन वो कंटेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक एक्सपर्ट आदमी उस कंटेंट को डिलीवर कर रहा है, ठीक है। जहां पे ईएटी की बात आ जाती है, एक्सपीरियंस ई के, एक ई एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे दो चीजें करते हैं। एक, या तो आप रियल एक्सपर्ट को बैठा लो, जो रियल एक्सपर्ट है, जो कंटेंट लिख रहे हैं, जो कई सालों से कर रहे हैं, उस एरिया में काम कर रहे हैं, या तो आप मिमिक करो। मोस्ट ऑफ द टाइम में लोग क्या करते हैं, मिमिक करते हैं। रियल एक्सपर्ट नहीं है, कंटेंट राइटर की नहीं है, तो क्या करेंगे, मिमिक करेंगे। तो जब हम मिमिक करते हैं तो हम गुड कंटेंट की तरफ में ज्यादा अलाइन होते हैं, जब अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, बड़ा स्ट्रक्चर्ड के साथ में लिखते हैं, टेबल्स होंगे, यू नो दैट, इंफोग्राफिक्स होंगे, स्कैनेबल कंटेंट होगा, बहुत ज्यादा बड़ा कंटेंट, बड़ा बड़ा पैराग्राफ नहीं होगा, उसको लोग एक बार स्कैन करें तो इस तरह से उसका H2 H3 अलाइन है कि स्कैन कर ले लोग, फलाना ढिमकाना होगा, ठीक है। तो हम लोग मिमिक कर सकते हैं, गुड कंटेंट को एज अ हेल्पफुल कंटेंट कर सकते हैं, लेकिन हेल्पफुल कंटेंट में बना सकते हो। मैं अभी एक न्यूज एजेंसी के साथ में ही काम कर रहा हूँ, कलकत्ता के, बंगाल की है। बंगाली मुझे बोलना नहीं आता है, बट मैं उसको ट्रांसलेट कर करके देखता हूँ और बताता हूँ। उसके साथ में अच्छा ग्रोथ हम लोगों ने किया है। उनके साथ में क्या, ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, उनके साथ में हमें सिर्फ ट्वीट करके उनके प्रोफाइल को गूगल को शो करना कि भाई देखो इतने साल से ये कर रहे हैं, उनकी लिंक्डइन और उनकी जो भी उनके नाम की जो एक ट्रेल बना हुआ, ट्रेल बता देता है कि वो आदमी ने क्या क्या काम किया, कहाँ कहाँ काम किया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का फर्क यही होता है कि नेसेसरली हो सकता है कि शशि थरूर वाली इंग्लिश ना हो, लेकिन अगर वो कोई एक्सपर्ट आदमी ने लिखा, जो एरिया का आदमी है, तो वो अच्छा कंटेंट, उसको गूगल हेल्पफुल कंटेंट मानता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में ये फर्क है, पहली बात। दूसरी चीज कि अभी जैसे जैसे जमाना बढ़ रहा है ना, पहले क्या था ना कि एआई ने क्या किया, एआई ने चीजों को स्पीड अप किया, जैसे कंप्यूटर ने चीजों को स्पीड अप किया, वैसे एआई ने किया। एक बहुत बड़ा स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसमें एक पॉइंट आता है स्ट्रक्चरल थिंकिंग का आता है। तो अभी जो जितना भी कंटेंट हम डालते हैं ना, वो स्ट्रक्चरल थिंकिंग के साथ जाता है। अब स्ट्रक्चरल थिंकिंग क्या है, लेट्स से एक कंटेंट है, वो कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं, लेट्स से हम डिलीवर कर रहे हैं कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली के अंदर में कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली अपने यूजर की तरह सोचना पड़ेगा कि देखो ये यूजर है, और ये यूजर बोल रहा है कि बेस्ट रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में जाके क्या क्या देखेगा। पहली बात कि अगर वो बाहर का आदमी आ रहा है जिसके बारे में हम कर रहे हैं बेस्ट रेस्टोरेंट, कि वो अगर बाहर का आदमी कंटेंट पढ़ रहा है कि उस जगह का आदमी पढ़ रहा है जो कैजुअली जाता है, उसके बारे में पहले हमें सोचना पड़ेगा किस तरह का। अगर हमारा ब्लॉग
सिर्फ दिल्ली के बारे में बात करता है और हम ज्यादातर दिल्ली के लोगों को कवर, 100 दिल्ली जैसे है तो दिल्ली के लोगों को कवर करते हैं, बाहर के ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, सिर्फ दिल्ली का कवर करते हैं। तो बेसिकली हमारे आसपास के लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में, वो हमारा कंटेंट है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें फॉलो अप क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये आदमी अगर रेस्टोरेंट जाता है तो रेस्टोरेंट में क्या चीजों को सोचता है, खाना कैसा, दूसरा क्या है भाई एम्बियंस कैसा, फैमिली के साथ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्राइसिंग कैसा है, क्या प्राइसिंग बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है, एक प्राइसिंग की रेंज जो सोच के चलता है कि मतलब बजट बनाने के लिए मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है। और चौथा वहां पे हम कैसे पहुंच सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो क्या है या नियरेस्ट लोकेशन क्या है, कि फलाना ढिमकाना सोचते हैं। तो अगर हमें ये 4 डेटा पॉइंट मिल गया तो इस 4 डेटा पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, हर एक लिस्टिंग को बना सकते हैं कि देखो भाई रेस्टोरेंट नंबर 1 ये है, उसमें ये 4 चीजें हैं, आप जा सकते हो। मे बी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हिस्ट्री लिख दिया, या एक चीज और ऐड कर दे कि इसमें क्या क्या चीज आप खा सकते हो, जैसे कि आप इसमें छोला भटूरे खा सकते हो, फुल मील नहीं खा सकते और चाय कॉफी पी सकते हो फलाना ढिमका, ठीक है। वैसे करके हमने 3-4 पॉइंट बनाए, उसके हिसाब से कर दिए। अब ये क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर थिंकिंग है कि पहला क्वेश्चन आता है कि आपको रेस्टोरेंट जाना, अच्छा जाना है, लेकिन जाने के लिए आपको क्या, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या पॉइंट की जरूरत है, उस पॉइंट के हिसाब से हम सोचते हैं और उस पॉइंट के हिसाब से हम चीजों को देते हैं। तो अभी के टाइम में ये गूगल 2015 से बोल रहा है कि भैया अच्छा कंटेंट लिख लो, हम ही नहीं सुधर रहे थे, है ना, हम ही बोले थे भैया हम तो बैकलिंक बना के कंटेंट जैसा भी हम तो रैंक कर जाएंगे। गूगल ने बोला ठीक है अब लो एचसी का डंडा लो तुम, तो फिर उसने कर दिया डंडा, तो उसे सब सुधर गया। फिर सब कोई रो रहे हैं कि बैठ के हमारा ट्रैफिक कम हो रहा, हमारा ट्रैफिक तो ना कम हुआ, बाकी सब रो रहे हैं। Brilliant example. And I don't think anyone could have explained it better than this. So one of us last, Totally agree. yeah. So last 5 minutes, so I'll squeeze in this one question because again, continuing on the same point, can AI generated tofu content replace human written pieces without hurting trust and rankings? हो सकता है क्या? नहीं, फिर से बोलना एक बार, क्या बोले? Can AI generated content, right, replace human generated or human written content without really hurting your trust and rankings? वार्ता लोगे इसको? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एआई को है ना एक जूनियर शेफ के जैसे देख सकते हैं, जो हेड शेफ को किचन में हेल्प करता है। इट कैन हेल्प प्रेप, बट पूरा रेसिपी को आउटपुट देने के लिए हेड शेफ तो चाहिए ही चाहिए। सो इट कैन सपोर्ट इन प्रोडक्शन, आई वुड से, बट automating it fully, it often lacks factual data and the authority, the experience. That is what I think. Yes, actually completely agree with Parth, because अभी रिसेंटली एचरेफ्स ने एक केस स्टडी पब्लिश किया है जिसमें मतलब उन्होंने बोला है कि 80% कंटेंट, एआई रिटन कंटेंट के साथ भी आप रैंक कर सकते हो। लाइक 80 मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आर यूजिंग एआई कंटेंट, बट जब तक हम इंटेंट फुलफिल कर रहे हैं तब तक गूगल हमें रैंक करता रहेगा। ये नहीं है कि मतलब दो अलग अलग कैटेगरीज नहीं है कि एआई रिटर्न कंटेंट और ह्यूमन रिटर्न कंटेंट, परसेंटेज वैरी हो सकता है, आप मिक्स कर लो, जैसे मतलब जिस कीवर्ड के हिसाब से अपन मिक्स करके इंटेंट फुलफिल करो। दैट्स व्हाट आई थिंक। देखो सिंथेटिक कंटेंट से तुम बच नहीं सकते हो, ठीक है। सिंथेटिक कंटेंट मतलब कि जो एआई रिटन कंटेंट है उसको सिंथेटिक कंटेंट कहते हैं, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में हो, ऑडियो के फॉर्मेट में। तुम्हें गूगल का, तुमने गूगल एआई स्टूडियो का ऑडियो कभी तुमने चेक किया है कैसा है? कभी चेक किया है? यस, हाँ हाँ। उसके एआई स्टूडियो में रियल कंटेंट में तुम फर्क नहीं बता सकते, उसका एआई स्टूडियो, ठीक है। और लोग क्या कर रहे हैं, लोग बेसिकली सिंथेटिक कंटेंट अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ,
जैसे कि अभी मूवी आई सुपरमैन, ठीक है? सुपरमैन के मूवी का रिव्यू जो है आईएमडीबी के पेज में है, ठीक है? तो आईएमडीबी पेज का लिंक चैट जीपीटी में पोस्ट किया लोगों ने और बोला कि बेस्ड ऑन दिस यू नो दैट ऑल दिस रिव्यू कैन यू कैन यू टेल मी कि ये मूवी कैसा, सारे रिव्यू को देख के आप बताओ कैसा है। अब तुमने उसको डीप एनालिसिस में डाल दिया, चैट जीपीटी कोड लिखेगा और वो सारे कंटेंट को स्क्रैप करेगा, स्क्रैप करने के बाद में एक अपना रिव्यू लिख के दे देगा, ठीक है? उस रिव्यू को तुमने उठाया और उस रिव्यू को तुमने पुट कर दिया नोटबुक एलएम में, और नोटबुक एलएम में तुमने बेसिकली क्या किया कि जो उसका ये है ऑडियो वाला पॉडकास्ट वाला है वो तुमने ऑन कर दिया और वहां से कंटेंट को डाउनलोड कर लिया। फिर एक दूसरे टूल में गए तुम जहाँ पे तुम ऑटोमेट कर सकते हैं चीजों को, और वो ऑडियो को डाल दिया, वो ऑटोमेट कर देगा और तुम्हें फर्क भी नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली में लोग नहीं बोले, क्योंकि नोटबुक एलएम का जो वो पॉडकास्ट फीचर है दैट इज वेरी गुड फीचर, ठीक है? और वो बहुत ही ह्यूमन लाइक फील होता है। तो एनीवेज अब एसईओ में आ जाते हैं, तो लोग ऐसा भी काम कर रहे हैं। तो सिंथेटिक कंटेंट, पॉइंट ये है कि सिंथेटिक कंटेंट से बच नहीं सकते, सिंथेटिक कंटेंट तो घुस चुका है, ठीक है? और एआई जनरेटेड कंटेंट, जैसा कि पार्थ ने कहा शेफ है, उसको बोला था एआई असिस्टेंट, नाम ही है असिस्टेंट, तो वो असिस्ट करेगा तुम्हें। अभी भी चैट जीपीटी बहुत गलत डेटा देता है, एनालाइज करने जाओगे ना बहुत गलत डेटा देता है, ठीक है? उसको बार बार बताना पड़ता है क्या है क्या नहीं। हो सकता है विद 3-4 साल के बाद में, 2 या 3 साल के बाद में बेटर हो जाए चीजों में वो, ठीक है? समझने में बेटर हो जाए, चीजों में बेटर हो जाए और शायद हम ऑटोमेट कर पाए चीजों को। बट अभी के टाइम में अगर बात करोगे तो सिर्फ चैट जीपीटी के हिसाब से तुम अगर ऑटोमेट कर दोगे एन के हिसाब से, तो वो एक शैलो कंटेंट देगा, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं चैट जीपीटी तो है फूफा, उसको कुछ भी बोलो वो जवाब जरूर देगा, चुप नहीं रहेगा। उसको ये नहीं बोलेगा कि हमको नहीं आता है, वो जवाब तुमको जरूर देगा, समझे? हाँ, वो जवाब कुछ भी हो सकता है। तो उस चक्कर में हमें क्या करना है कि अभी के टाइम में फिलहाल हमें बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है कि जो वो बोलेगा वो हमेशा सच नहीं मानना। तो वो तो केस है इसके साथ में कि ये है। दूसरा कि जो बड़ा प्रॉब्लम अभी वर्ल्ड के अंदर में आने वाला है, जो इन्होंने माइंडलेस तरीके से ऑटोमेट किया है चीजों को, और हजारों लाखों आर्टिकल चले गए हैं, और आगे का जो जीपीटी है, आगे का जो फ्यूचर का जो चैट जीपीटी या जो भी एलएलएम बनेगा, वो इस सिंथेटिक डेटा पे करेगा जो कि बहुत खराब डेटा है। तब तुम्हारी हालत खराब होनी चालू हो जाएगी। तो उस टाइम में अब क्या होता क्या नहीं होता तो बहुत इफ एंड बट व्हाई नो है ना, है, लेकिन खराब तो चीजें कर दी हैं लोगों ने चैट जीपीटी का इतना ज्यादा यूज करके। बट ठीक है, अगर कंटेंट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तुम अगर जैसे कि पार्थ ने बोला कि तुम उसको अगर गाइड कर सकते हो या उसको बेटर कर सकते हो ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ, उसको तुम बेटर कर सकते हो तो यू कैन डू इट बेटर। स्क्रिप्ट तो आजकल 80% जो स्क्रिप्ट तुम देख रहे हो ना यूट्यूब में, चैट जीपीटी लिख रहा है, इंसान ना लिख रहा है। टोटली एग्री। और मैं मतलब एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि फूफा के पास सिर्फ ऑथोरिटी है, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ट्रस्टवर्दीनेस नहीं है। तो फूफा वाला नहीं चलेगा। बट वेरी jokes apart, I can totally relate to it. And recently I was searching on Google Maps. इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ रील दिख गया, यूट्यूब शॉर्ट्स पे कुछ दिख गया कि भाई ये कैफे बहुत सही है, यहाँ पे तिरामिसू बहुत सही मिलता है, यहाँ पे अफोगाटो है। तो बेसिकली इफ आई गो टू गूगल मैप्स, सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर कैफे एंड गो टू रिव्यूज, सो इफ देर आर 200 रिव्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर कैफे, तो ऊपर ही समराइज बाय जेमिनाई दिखा रहा है, और वो समराइज किया हुआ है 200 रिव्यूज को, वहां पे लिखा है कि दिस कैफे इज पॉपुलर फॉर एफोगाटो। तो मतलब मेरा काम उधर ही इजी हो गया, मतलब मुझे 10-20 रिव्यू नहीं पढ़ने पड़ रहे कि इज दिस रियली ग्रेट कैफे फॉर एफोगाटो, क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स पे तो मतलब अभी क्रिएटर्स तो मतलब किधर भी जाके प्रमोट कर दे रहे हैं, मतलब सो या इट्स बीन कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज केस। और आई एम स्टिल बेटिंग ह्यूज ऑन गूगल। उसके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके पास जो इकोसिस्टम्स है, वेदर गूगल मैप्स, एंड्रॉयड, जीमेल, पूरा जी सुइट, लाइक मतलब 5 years डाउन द लाइन, मतलब गूगल इज विनिंग दिस रेस, ऐसा मुझे लग रहा है। यप, थिंक सो। फैंटास्टिक कन्वर्सेशंस, आज बहुत सही कन्वर्सेशंस हुए, एंड रियली एंजॉयड एवरी सिंगल मिनट ऑफ इट। थिंक सो जो लोग लाइव ज्वाइन कर रहे हैं उनको मजा आ रहा है। आई एम नॉट श्योर कि रिकॉर्डेड सेशन को जो सुन रहे हैं उनको कितना मजा आ रहा है, बट
yeah. Absolutely. So, yes, we'll wrap up for the day, and wonderful conversation, wonderful insights. Thank you, Arbab, Aditya, for chiming in, and Deepali too. And as always, Parth, a valuable addition to the entire conversation.